Good morning, everyone. I'm Ritika, Miss, your science teacher, and today I'm here to discuss your exam FA2 portion with you. Along with your exam FA2 portion, I will discuss your marking scheme, exam pattern, one short revision class, and at last, we revise some practice question. Now, let's start. So, first, we need to understand what is our exam portion. So in this examination, the exam pattern will be objective type based. Your FA2 question, your FA2 exam will be based on your objective type pattern. The chapter जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है is chapter 3 a path to a healthy body and chapter 4 exploring the magnet. These two chapters are important for your exams because these two chapters are very important because ये आपके एग्जाम में आ रहा है. Now let's talk about your examination pattern, FA2 exam pattern. So your FA2 exam pattern will be in 3 sections. Your FA2 exam will be in 3 sections. All the questions are objective based. There are total 30 questions in your FA2 exam. Let's see how. Section A. Your section A consists of fill in the blanks. 5 marks के fill in the blanks होंगे. आपके जो FA2 एग्जाम पोर्शन होंगे साइंस के, इसमें 3 सेक्शंस इन्वॉल्व है. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा 5 मार्क का. इट मींस ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. योर सेक्शन बी also carry 5 marks, 5 questions, 1 word answer. And section C, 20 questions, 20 MCQs, half marks each. It means there are 3 sections. One section fill in the blank, second section 1 word and the third word is MCQ which is 20 questions. जो कि 20 questions होंगे half marks के. It means total आपके 10 हो गए. यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल मार्क्स 20. FA2 मार्क्स कितने एग्जाम्स के होंगे? मार्क्स का होगा 20 मार्क्स का. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वन शॉर्ट रिवीजन. So first we will discuss our chapter 3. The chapter 3 is a path to a healthy body in which we discuss कि जो फूड होता है any substance consumed to provide energy and substance life. यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो आपका फूड होता है. हमारे फूड में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? तो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट? देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. योर कार्बोहाइड्रेट, fat, protein, vitamins and minerals. These five are the types of nutrient. But when we asked what are the components of food, there are 7 components of food. Apart from these 5 types of nutrient, water and roughage are the component of food. Water and roughage are the component of food. So there are total 7 component of food. Carbohydrate, fat, protein, vitamin and mineral are the 5 types of nutrient. And the remaining 2 are the water and roughage which is conclude in total component of food. Okay. What are the category of food? There are 3 category of food. There are 3 category of food. Energy giving, body building, प्रोटेक्टिव. ठीक है. एनर्जी गिविंग हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. बॉडी बिल्डिंग यानी कि वैसे फूड आइटम्स जो कि आपके बॉडी में डैमेज सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करते हैं, आपके बॉडी एंड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वो हो गया आपके बॉडी बिल्डिंग. प्रोटेक्टिव जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, लाइक विटामिन एंड मिनरल्स. अगर मैं पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट का, अगर आपके एग्जाम में आता है
Give two example of energy giving food. Then the answer is carbohydrate and fats. But अगर मैं ये पूछूं कि what are the sources of एनर्जी गिविंग फूड, तो सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या हो गया आपका, रोटी हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, फैट का एग्जांपल बटर मिल्क। तो जब आपसे सोर्स पूछा जा रहा है तो सोर्स का मतलब क्या हो गया, फूड आइटम का नाम। एग्जांपल अगर पूछ दिया जाए तो बॉडी बिल्डिंग का एग्जांपल क्या है आपका, प्रोटीन है। प्रोटेक्टिव फूड का विटामिन एंड मिनरल। मिनरल्स मेनली वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं एंड फ्रूट्स आपके मेनली किसमें होते हैं, ये विटामिन आपके फ्रूट्स में मोस्टली पाए जाते हैं। आपको क्या याद रखना है कि एनर्जी गिविंग कौन से न्यूट्रिएंट्स इस कैटेगरी के अंडर में आते हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, हर एक न्यूट्रिएंट के जो सोर्सेज होते हैं, हर एक न्यूट्रिएंट के सोर्सेज को याद रखना है। उसके बाद जैसे मिनरल में आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन सभी के जितने भी हैं उन सभी के आपको वर्क फंक्शन याद रखने। लाइक कैल्शियम का काम क्या होता है कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, आयरन का ब्लड फॉर्मेशन करना, और भी बहुत सारे होते हैं जिनका काम आयोडीन का होता है, जो कि आयोडीन की कमी से आपकी बॉडी में कौन सी डिजीज होती है। आपको जितने भी विटामिन्स हैं, विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो वो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक कौन सा विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी एंड सी जो है वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन वर्ड जो टर्म दिया था विटामिन, ये किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, फंक ने दिया था। तो ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। उसके बाद विटामिन की किसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन से डिजीज होते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन से डिजीज होते हैं, बायोलॉजिकल नेम जो केमिकल नेम्स होते हैं वो याद रखने होंगे। आफ्टर दैट अब मैंने आपको बोला कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इट गिव्स यू एनर्जी। बट फैट वो आपको आपकी बॉडी में एनर्जी देने के अलावा आपकी बॉडी को हीट भी प्रोवाइड करता है, वो आपके स्किन के अंडर में स्टोर हो जाता है। बट एक्सेस कंजप्शन ऑफ फैट लीड्स टू ओबेसिटी या हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां होती है। नाउ फैट के बारे में मैं बता दी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हो गया। प्रोटीन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करना, टिश्यूज को रिपेयर करना, आपकी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी होता है। आपके प्रोटीन का मेजर सोर्स क्या हो सकता है, सोयाबीन हो गया, पल्सेस हो गया, पनीर हो गया, एवरीथिंग जो भी कुछ दाल वगैरह हो जाता है, ये सब क्या हो गया, प्रोटीन के सोर्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद व्हाट डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स वैसे प्लांट बेस्ड फूड होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इनका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट यानी कि बॉडी से जो भी वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, हमारे बॉबल मूवमेंट को इजी करने का काम करता है, हमारे गट्स को हेल्दी रखने का काम करता है। ठीक है, वाटर का क्या रोल होता है, वाटर हमें हाइड्रेट रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारी अदर फंक्शंस होती है लाइक फ्लूइड ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, बहुत सारे होते हैं। आपके नोट्स में सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, बट इट इज अ टाइप ऑफ वन शॉट रिवीजन, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको क्लियर कर रही हूँ। नाउ हमने कंपोनेंट समझ लिया, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो फॉर द स्टार्च टेस्ट, अगर मुझे स्टार्च टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है कि कार्बोहाइड्रेट किसी भी फूड सैंपल में है या नहीं है, तो फॉर द कार्बोहाइड्रेट टेस्ट वी यूज आयोडीन। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम यूज करेंगे आयोडीन का सॉल्यूशन यूज करेंगे। लेकिन कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका यूज हम प्रोटीन के टेस्ट के लिए करेंगे, तो प्रोटीन टेस्ट के लिए हम यूज करेंगे कॉस्टिक सोडा, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, प्लस कॉस्टिक सोडा जिसे हम लोग कॉमनली सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और उसके अलावा CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए। ये दोनों के दोनों केमिकल्स हमें किसके लिए चाहिए, प्रोटीन टेस्ट के लिए चाहिए। अब वो टेस्ट जिससे हमें ये पता करते हैं प्रोटीन है या नहीं है प्रेजेंट, तो उस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम है बायोरेट टेस्ट। किस टेस्ट की मदद से हम प्रोटीन को फाइंड करते हैं, तो बायोरेट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट की मदद से हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट को टेस्ट करते हैं, और प्रोटीन टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बायोरेट टेस्ट। फैट के लिए क्या करना
करना है, आपको किसी भी ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, अपने फूड सैंपल को क्रश करना है। उसके बाद उस फूड सैंपल को रिमूव करके उस पेपर पे आपको क्या देखना है कि कोई ऑयली पैचेस है या नहीं। अगर वो ऑयली पैचेस होते इट मींस इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड फूड एंड जंक फूड की। बैलेंस्ड फूड एंड जंक फूड क्या होता है? अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द बेसिक न्यूट्रिएंट इन इक्वल एंड राइट प्रोपोर्शन। एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल एंड राइट प्रोपोर्शन में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। ये डिसाइड कैसे होता है? तो ये आपके एज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, आपके हेल्थ स्टेटस पे डिसाइड करते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी आपका डाइट डिसाइड होता है। हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग डाइट होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, हेल्थ स्टेट एंड ये मैंने क्या बोला, हेल्थ स्टेट मैंने बोला, एज बोला, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे मैंने बोला। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट का बेनिफिट ये होता है कि आपके बॉडी में सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी को वो पूरा करता है, आपको एक प्रॉपर डाइट देता है जिसकी वजह से आप हेल्दी रहते हो। बट जंक फूड क्या होता है? कि जंक फूड क्या होता है कि एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपके लीवर जो होती है वो वीक हो जाती हैं। इसीलिए हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए जंक फूड, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर होता है। उसके बाद पैकेज्ड फूड क्या होता है? पैकेज्ड फूड क्या होता है? पैकेज्ड फूड जो होता है वैसे फूड आइटम्स जो कि हम लोग पैक करके सेल करते हैं। तो जब हम पैक करते हैं फूड आइटम्स, उस दौरान जो होता है हम सब कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। लाइक जब फैक्ट्रीज में जो फूड आइटम्स पैक्ड होते हैं तो उस टाइम कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड किए जाते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी इज नोन एज फोर्टिफिकेशन। एक टर्म यूज किया मैंने, फोर्टिफिकेशन। ये फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी फूड आइटम में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, उसकी क्वालिटी को, उसके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फूड माइल्स की। ये जो फूड जो होता है, एक डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है किसी भी फार्म हाउस से आपके प्लेट तक आने में जितना उसको टाइम लगता है, इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं क्या? हम फूड माइल्स बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका फूड माइल्स जितना कम होगा, आपका फूड उतना फ्रेश होगा, आपका ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस होते हैं उतने कम लगते हैं। सीजनल फूड की अगर मैं बात करूं, लोकल सीजनल फूड की, हर एरिया का लोकल फूड होता है। लाइक चेन्नई की बात करी हूं तो वहां पे आपका कोकोनट हो गया। कोकोनट से मोस्टली वो लोग क्या यूज करते हैं? इडली सांभर वगैरह में बनाने में यूज करते हैं। तो अलग अलग जगह का जो होता है, अलग अलग एरिया का अलग अलग लोकल फूड होता है, ठीक है? नेक्स्ट, क्यूलिनरी प्रैक्टिस, द मेथड यूज टू प्रिपेयर फूड। जिस मेथड से अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिस करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं क्यूलिनरी प्रैक्टिस। सो देयर आर टू मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था? पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग क्या करते थे कि वो सिलवट्टा यूज करते थे, चूल्हा यूज करते थे। बट नाउअडेज इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारी कुकिंग स्किल्स एंड कुकिंग मेथड्स भी इम्प्रूव हो गए, जिसकी वजह से अभी हमारे पास ग्राइंडर है, ओवन है, माइक्रोवेव है, एयर फ्रायर है, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड कुकिंग इज वेरी इजी बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर 3। नेक्स्ट हमारे चैप्टर 4 में, अब हम चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 4 हमारा मैग्नेट, एक ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचर में प्रेजेंट होता है और जिसमें हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइट प्रेजेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका लोड स्टोन मैग्नेटाइट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे कि जो बहुत सारे मिनरल्स और ओर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो, जैसे कि आपका हॉर्सशू मैग्नेट, बार शेप मैग्नेट, निडल हो गया, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वैसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक मटेरियल, और वैसे जो कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल वुड हो गया नॉन मैग्नेटिक, और एग्जाम्पल आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। नाउ मैं बात करूंगी कि ये मैग्नेट की डिस्कवरी किसने की थी। मैग्नेट की डिस्कवरी जो की थी किसने की थी? मैग्नेस ने की थी, MAGNES। इन्होंने क्या किया था? मैग्नेट की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? तो जब ये एक जंगल में अपने शिप को, सबसे पहली बात, मैग्नेस जो थे एक ग्रीक के रहने वाले शेफर्ड थे, ग्रीक के शेफर्ड थे, यानी कि वो व्यक्ति जो कि
शिप की हर्डिंग करता है उसे बोलते हैं शेफर्ड। तो ये ग्रीक के रहने वाले शेफर्ड थे जिनका नाम था मैग्नस। ये अपने जंगल में, वो जंगल में जा रहे थे अपने शिप को हर्डिंग करने के लिए, उनके हाथ में एक लॉन्ग स्टिक थी और वो सेम मटेरियल जो उनके स्टिक में था वही उस पत्थर में था। उस पत्थर का नाम क्या पड़ा? लोडस्टोन। उस रॉक का नाम क्या पड़ा? लोडस्टोन। लोडस्टोन एक फर्स्ट परमानेंट नेचुरल मैग्नेट था और उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? उसके अंदर मैग्नेटाइट प्रेजेंट था। मैग्नेटाइट क्या था? एक नेचुरली अकरिंग आयरन ओर। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप मैग्नेट को दो पीस में ब्रेक कर देते हो तो क्या होगा? अगर आपके मैग्नेट को आप कितने भी पीसेस में डिवाइड कर दो, ब्रेक कर दो, हर एक पीस एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, उसके पास खुद का दो पोल होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि आप कैसे भी अगर मैग्नेट को सस्पेंड कर दो फ्रीली तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ में ही अलाइन कर लेगा। वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा। ये कैसे डिसाइड होता है कि हमारा नॉर्थ और साउथ कौन है? हमारा अर्थ खुद में ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसके पास खुद का एक नॉर्थ साउथ पोल होता है। तो जब भी कोई छोटा सा मैग्नेट उसके सामने आता है तो वो ऑटोमेटिकली अर्थ के नॉर्थ और साउथ से अलाइन कर लेता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ और साउथ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करता है। ऑलवेज ये याद रखिए कि मैग्नेट जो होता है हमेशा पेयर में होता है, वो सिंगल नहीं रहता है। मैग्नेट का पोल हमेशा पेयर में होता है। अब ये पोल क्या होता है? मैग्नेट के जो दो एंड होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक पोल। पोल हमेशा पेयर में होता है। अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है जिसका खुद का नॉर्थ और साउथ पोल होता है। कंपास वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप क्या करते हो? डायरेक्शन को फाइंड करते हो, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक कंपास, जिसका काम क्या होता है? नेविगेशन में काम करता है और ये आपको माउंटेनियर्स को डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट। आपके एमआरआई मशीन्स, मेडिकल में आपके एमआरआई मशीन्स में यूज होते हैं। आपकी इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपके कंपास, हर जगह पे इसका यूज है, चाहे वो छोटा मैग्नेट हो या बड़ा मैग्नेट हो। मैग्नेट के अलग अलग शेप होते हैं, मैग्नेट के अलग अलग साइज होते हैं। सो इस चैप्टर को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको दोनों चैप्टर को ध्यान से सुनना है, समझना है। आपके नोट्स को ब्रीफली एक एक पॉइंट को ध्यान देना है, उसके एग्जाम्पल्स को देना है, किस टेस्ट के लिए कौन से केमिकल्स यूज किए गए, क्या नाम था टेस्ट का, और एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं, पोल्स याद कर लेने हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स को समझ लेने हैं। इट मींस आपको पूरे नोट्स को ब्रीफली देखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बट एट लास्ट हम लोग एक रिवीजन क्लास करेंगे, लास्ट प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ये देखिए, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सा कलर देता है जब आप उसमें आयोडीन डालते हो? तो इट गिव्स यू ब्लू और ब्लैक कलर। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। which nutrient is primarily responsible for कौन सा न्यूट्रिएंट जो है रिस्पॉन्सिबल है डैमेज से बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए? तो इट्स प्रोटीन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब फ्रीली मैग्नेट, सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन। एक मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो किस डायरेक्शन में आता है? तो ऑलवेज वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। मैक्सिमम मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां होता है? उसके पोल्स पे होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा फील होता है। तो ये आपके जो भी होंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ? दो हाफ में करोगे तो क्या होगा? पोल्स गायब हो जाएंगे या दो न्यू मैग्नेट बन जाएंगे? वो ओनली नॉर्थ पोल्स रिमेन। तो यहाँ पे अलग अलग दो मैग्नेट बन जाएंगे विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चंस आपको सेम नहीं होंगे, बट द थिंग इज कि आपको प्रैक्टिस करती रहनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।